صرف جمعے کے دن مسجد میں آ رہے ہیں، جمعے کے دن کی بھی فجر کی نماز ہم نہیں پڑھے ہوتے ہیں، اور جمعے کے دن ہم پہلی صف میں آ کے بیٹھیں 11 بجے سے، مولانا جرجیس صاحب خطبہ دیں گے، 11 بجے سے مسجد بھر گئی، جو پورے ہفتے مسجد میں نہیں آیا مولانا جرجیس کا خطبہ سننے کے لیے آج پہلی صف میں بیٹھا، سعودی عرب کا رومال ڈال کے، جنت الفردوس بھی لگایا، خوشبو آ رہی ہے، پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، سعودی عرب کا رومال بھی ڈالا ہوا ہے، اور جمعے کے دن نماز پڑھ کے نکلا، داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا احسان کر کے آیا ہے۔ سماج کے لوگ میٹنگ کریں، بتائیں بے نمازیوں کے لیے آپ کے ہاں کتنے ایکشن لیے گئے، کتنے ایکشن؟ آپ جواب نہیں دے پائیں گے اس بات کا، آپ جواب نہیں دے سکتے اس بات کا، کتنے ایکشن لیتے ہیں آپ؟ شرابیوں پر ایکشن نہیں، جواریوں پر ایکشن نہیں، صرف لڑکا لڑکی لے کے بھگ جائے تو ایکشن لے لیتے ہیں آپ۔ اللہ کے نبی جس زمانے میں آئے لوگ جانوروں کی طرح ہو چکے تھے، پڑھیے سیرت، کتنا بھی ظالم ہو، ایک بکری جب بچہ پیدا کرتی ہے تو آپ دیکھیے گا بچہ پیدا کرنے کے بعد اسی جگہ پر کھڑی ہو کر وہ اپنے بچے کی غلاظت اور گندگی کو اپنی زبان سے چاٹتی ہے، اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جب بکری کا مالک دودھ دوہنے جاتا ہے تو بکری اپنے بچے کے لیے دودھ اوپر چڑھا لیتی ہے کہ سب یہی نچوڑ لے گا تو ہم اپنے بچے کو کیا پلائیں گے۔ اتنی ہمدردی، اتنا رحم اوپر والے نے بکری کے اندر بھی ڈالا ہے، اس جانور کے اندر بھی ڈالا ہے۔ لیکن عرب کے لوگ اس سے بھی زیادہ بگڑ چکے تھے، ان کے یہاں جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس سے زیادہ جانوریت کہاں ہوگی، اس سے زیادہ حیوانیت کہاں ملے گی؟ اور پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تو چلو ایک سکون تھا، پیدا ہوئی دفن کر دیا، نہیں، جب وہ بچی 4 سال کی ہو جاتی تھی تب اس کو نہلا کر، دھلا کر، کپڑے پہنا کر، اچھے لباس میں اور اچھا میک اپ کر کے، اس کے بعد اس کا باپ اس کو انگلی پکڑ کے لے جاتا تھا اور پہلے سے جنگل میں گڈھا کھود کر رکھتا تھا اور کہتا تھا بیٹی جھانکو، اس میں تمہاری امی دکھیں گی۔ جب بچی اپنی امی کو دیکھنے کے لیے اس گڈھے میں جھانکتی تھی تو باپ زمین پہ پیچھے سے دھکا دے دیتا تھا اور بچی اس گڈھے میں گر جاتی تھی اور اوپر سے مٹی سے پاٹ دیتا تھا اور رکتا تھا آخری سانس نکلنے تک، اور جب بچی آخری سانس لے کر مر جاتی تھی تب آتا تھا اپنے علاقے میں اور فخر کرتا تھا، گرو کرتا تھا اور کہتا تھا کہ آج میں نے اپنی 4 سال کی بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ یہ جانوریت تھی، یہ حیوانیت تھی، جنیشو کھر مڑی۔ ساری جنتا جب جانوروں کی طرح ہو جائے گی، شراب آپ کتنا بھی پی لیں اپنے سماج میں، لیکن شراب کو آپ اچھا نہیں سمجھتے، پینے والا بھی کہتا ہے بہت بری چیز ہے، اب کیا کروں، چھوٹتی نہیں ہے۔ عرب کے لوگوں کا رجحان تو یہ تھا، کتنا بھی بڑا بگڑا ہوا باپ ہو، مولوی جرجیس بہت بڑا شرابی، لیکن کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ جرجیس کا بیٹا بھی شراب پیے، اس کی بیٹی بھی شراب پیے۔ جرجیس خود بگڑا ہوا ہے، لیکن وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میری اولاد بھی بگڑے۔ ہم تو غلط راستے پہ چل ہی رہے ہیں، لیکن میری اولاد غلط راستے پہ نہ چلے، یہ جرجیس کی سوچ ہے۔ اگرچہ بگڑا ہوا ہے، آپ کتنے بڑے شرابی رہے، لیکن آپ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ میرا بیٹا بھی بڑا ہو کر شرابی بنے۔ لیکن عرب کا رجحان الگ تھا، ان کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو ماں کے دودھ کے بجائے سب سے پہلے بچے کے حلق میں شراب کے قطرے ڈالے جاتے تھے، شراب کی بوندیں ڈالی جاتی تھیں، اور یہ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے اپنے خاندان کے نام کو روشن کیا ہے۔ ہمارے خاندان میں شراب کو بہت اچھی چیز سمجھا جاتا ہے، لہذا سب سے اچھی چیز ہم نے اپنے بیٹے کو پلائی۔ جس بچے کے پیدا ہونے کے بعد جس کی رگوں میں ماں کا خون دوڑنے کے بجائے، ماں کا دودھ دوڑنے کے بجائے، عرب کی سڑی ہوئی چیزوں سے بنی ہوئی شراب جس کی رگوں میں دوڑے، وہ بچہ آگے چل کر کیا بنے گا؟ یہ ماحول تھا عرب کی دھرتی پر۔ آپ کتنے بھی ظالم ہوں، کتنے بھی گناہگار ہوں، موبائلوں پر
گفتگو کر کر کے آپ نے ایک نہیں سینکڑوں لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے ہوں، آپ کی ایک نہیں 10 گرل فرینڈ رہی ہوں، آپ کتنے بھی بڑے زناکار بن جائیں، لیکن آپ زناکار ہونے کے باوجود بھی، آپ گناہگار ہونے کے باوجود بھی اتنا بڑے گناہگار نہیں ہو سکتے کہ آپ نے اپنی ماں کے ساتھ بھی نکاح کر لیا ہو۔ آپ دوسروں کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ زنا کر لیں گے، لیکن اپنی ماں کے ساتھ نہ تو نکاح کریں گے نہ زنا کریں گے۔ اور اب جانوریت میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد نوجوان لڑکا دیکھتا تھا کہ میری ماں خوبصورت ہے اور میرا باپ مر گیا ہے، یہ میری ماں کسی دوسری جگہ شادی نہ کر لے، تو وہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتا تھا اور باہر نکال لاتا تھا اور اپنی چادر ماں کے اوپر ڈال دیتا تھا۔ اس بات کی طرف اشارہ تھا، آئے عرب کے لوگوں، یہ میری ماں نہیں ہے، آج کے بعد یہ میری بیوی بن گئی ہے، میری ماں کو کوئی نکاح کا پیغام نہ دے، میں نے اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا لیا۔ ہم کتنے بھی بڑے گناہگار ہوں، ماں کو بیوی نہیں بنا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عرب اس میں بھی آگے بڑھ گئے تھے اور اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا لیا کرتے تھے۔ ہم کتنے بھی بڑے ظالم ہوں اور گناہگار ہوں، لیکن شادی کے بعد اپنی بیوی کو کسی پرائے مرد کے ساتھ بھیجنا اور پرائے مرد کے بستر پہ سونا ہم گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن عرب کے اندر نکاح کا طریقہ یہ تھا کہ ایک نوجوان لڑکا کسی لڑکی سے شادی کر کے لاتا، اس لڑکی کو اپنے گھر میں لاتا، وہ میری بیوی ہے لیکن اس کے ساتھ رات نہیں گزار سکتا تھا، ابھی نہیں گزارے گا۔ اپنی بیوی کو جو نکاح کر کے لے تو آیا ہے، ودا کر کے لے تو آیا ہے، لیکن ابھی شدھ نہیں ہوئی ہے، وہ لڑکا جو نکاح کر کے لایا ہے اپنی بیوی کو اپنے دوست کے بستر پہ بھیج دیتا تھا، جاؤ تم اس کے بستر کو گرماؤ، اس کے بستر پہ سو جاؤ اور اتنے دن رہو جب تک کہ اس آدمی کی شرمگاہ سے تمہیں حمل نہ ٹھہر جائے، تمہیں بچہ نہ ہو جائے۔ پڑھیے بخاری شریف کتاب النکاح، اور زمانے جاہلیت کے نکاح میں جب پڑھتے پڑھتے اس جگہ پہنچیں گے تو زمانے جاہلیت کے 3-4 نکاح آپ کے سامنے آئیں گے۔ ان نکاح کے چیپٹر میں آپ دیکھیں گے وہ لڑکا بیوی میری لیکن میں اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا، اس کو بھیج دیا جاتا تھا اپنے دوست کے ساتھ، جاؤ اس کو لے جاؤ، اور جب پتہ چلتا تھا کہ وہ میرے دوست کا بچہ اس کے پیٹ میں ٹھہر گیا، حمل ٹھہر گیا، تب یہ دوست جاتا، یہ پتی جاتا اور اپنی بیوی کو وہاں سے لے آتا اور اپنے پاس رکھ لیتا۔ یہ اس بات ایسا اس لیے کیا جاتا کہ ایسا کرنے سے ان کی آستھا، ان کا عقیدہ، ان کا بلیف یہ تھا کہ بچہ نیک پیدا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ شادی کا ایک گھنونا طریقہ تھا۔ آپ اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے بستر پر نہیں بھیج سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی اسی بات پر عورت کو مارنے کی اجازت بھی دیتے ہیں کہ تمہاری بیوی اگر تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلائے فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، تو آئے لوگو اس بڑی غلطی پر تم اپنی بیوی کو مار سکتے ہو، اپنی بیوی کو پیٹ سکتے ہو، لیکن ایسی مار مت مارنا کہ جس سے اس کی پیٹھ پر نشان پڑ جائیں، جس سے اس کی پیٹھ پر زخم پڑ جائیں۔ ہلکی مار مارو، سزا کے طور پہ مارو، ایسی مار نہ مارو کہ جس سے اس کی پیٹھ پہ چوٹ کے نشان دکھائی دیں۔ لیکن مارنے کی اجازت یہاں دے دی ہے۔ صرف یہی ایک غلطی ایسی ہے کہ جس جرم پر اسلام، قرآن، محمد رسول اللہ عورت کو مارنے کی اجازت دے رہے ہیں، اگر وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلاتی ہیں تو تم اپنی بیوی کو ایسی مار مار سکتے ہو جو چوٹ کے نشان نہ بنا دے، جو نشان ظاہر نہ کرتی ہو، ہلکی پھلکی مار مار کے اس کو سمجھاؤ۔ عرب کے اندر نکاح کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، جانوریت ایک یہ کیا تھا، ایک خوبصورت لڑکی، اس کے پاس 3 سے زیادہ اور 10 سے کم لوگ جاتے ہیں، 3 بھی جا سکتے ہیں، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی، 9 بھی، 10 تک، 10 سے زیادہ نہیں۔ اور اس کے ساتھ
जिना करते। और जब बच्चा पैदा होता तो जितने लोग उसके पास अब तक आए हैं उनको बुलाती वो सबको, इधर आओ, सब आते। और मजाल नहीं थी कि कोई ना आए, ये समाज में उसूल था, जितने गए, औरत बुला रही तो सबको आना पड़ेगा, सब आते। 3 गए थे तो 3 आएंगे, 10 गए तो 10 आएंगे, 6 गए तो 6, जितने लोग उस औरत से मिले वो सबको बुलाती और सबको लाइन से बिठाल देती, सब बैठते। वो औरत सबको खाना खिलाती और खाना खिलाने के बाद कहती, तुम लोगों को तो अपना मामला मालूम है, तुम मेरे पास आए, तुम मेरे पास आए, तुम मेरे पास आए, तुमने मेरे साथ जिना किया, मेरा जिस्म हासिल किया, अब ये बच्चा पैदा हुआ है। अब औरत उस बच्चे को उठाती, गौर करो, ये तकरीरें शायद किसी मौलाना ने तुम्हें बताई हो, मुझे नहीं मालूम, जबकि ये हदीस की किताब बुखारी में मौजूद है, कोई ऐसी वैसी हदीस भी नहीं कि मिलती ना हो। वो औरत उस बच्चे को उठाती और उन लोगों में जो 10 से कम होते हैं, 10 तक, उससे ज़्यादा नहीं, वो औरत उस बच्चे को उठाती और उन 10 लोगों में से जिस की गोद में डालना चाहती उसकी गोद में डाल देती। वो औरत उस बच्चे को जिसकी गोद में डाल दे, ये औरत उसी की बीवी बन जाती और वो आदमी इसका पति कहलाता और वो बच्चा उसी मर्द का कहलाता जिसकी गोद में डाल दिया गया। इस तरीके से इस औरत को उस मर्द के साथ भेज दिया जाता और उस बच्चे को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी उस मर्द की ऊपर आयद हो जाती। ये निकाह का एक दूसरा घिनौना तरीका था। हमारे समाज में ये जानवरियत अभी भी नहीं पाई जा रही है। मेरे भाइयों, एक औरत के पास चाहे कितने मर्द चले जाएं, लेकिन औरत ये अच्छी तरीके से जानती है कि मेरे पेट में पलने वाला बच्चा है किसका। ये औरत ही बता सकती है, आदमी नहीं। ये औरत ही बता सकती है कि वो बच्चा है किसका। उसकी गोद में डाल दिया। आओ तुम्हें निकाह का एक तीसरा तरीका भी बताऊं जो अरब की धरती पर था, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले और नबी बनने से पहले ये जिहालत अरब की सरजमीन पर थी और जिसकी तरफ वेद ने इशारा किया है। जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी, भाई जिसको जाना उठ के चला जाओ, बीच में उठोगे तो हमें डिस्टर्ब होगा। देखिए, पहले आगे बैठ जाएंगे और बाद में फिर भागने लगेंगे। पता नहीं, हम तो इतनी आसान उर्दू बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए। हम कोई हैदराबाद और बम्बई में तकरीर थोड़ी कर रहे हैं कि स्पीड में हो और वो सब समझने वाले हैं। हम मालूम है, 20 साल से हम आपके इलाके में आ रहे हैं, हमें मालूम है कौन से जुमले इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। हम बहुत आसान, और इसीलिए आप भी हमें बुलाते हैं, वरना यूपी में तो हज़ारों मौलवी भरे पड़े हैं। आप हम ही को लायक कर रहे हैं, पसंद करते हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि आप हमारी बात को समझ रहे हैं, फिर भी भाग रहे हैं। कभी कभी जब 90 साल का बुढ़ा उठ के जब जाता है तो हमको और गुस्सा आता है, तो आया क्यों था। और बीच में जब 80 साल का 90 साल का बुढ़ा उठ के जा रहा तो अब वो जाके क्या करेगा। अब वो चाचा जी चाची के काम के भी नहीं रहे, लेकिन उठ के जा रहे हैं। अब जाके करेंगे क्या वहां जाके, घर पे समझ में ही नहीं आता। तो सुनिए एक और घिनौना तरीका अरब के अंदर शादी का। ये तो थी 3 से ज्यादा और 10 तक लोग एक औरत के पास जाते। कुछ औरतें, ये बड़ा अजीब मसला है जो हम बताने जा रहे हैं, तीसरा निकाह, ये बड़ा घिनौना है। कुछ औरतें अरब के अंदर अपने घरों के छत पर हरी झंडियां लगा लिया करती थी। ये भी बुखारी के अंदर है, हरी झंडियां लगा लिया करती थी। और हरी झंडी का मतलब ये होता था कि उनके पास जो भी आना चाहे चला जाए, किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है। तो पूरे साल में उनके पास बहुत से मर्द चले जाते। क्या हुआ, कोई खो गया? हाँ, वो तो मालूम है। हाँ, इसके ऊपर खड़ा करिए तो देखिए तो भैया ये किसकी बच्ची है। अरे भैंस के आगे बीन बजा रही हो, हम क्या जाने क्या बोल रहे हैं।
आओ भाई इधर आओ कैमरे के सामने। देखिए भाई ये किसकी बच्ची है, जिसकी हो ले जाओ, नहीं तो हम यूपी ले जाएंगे। चलोगी हमारे साथ, चलोगी? नाम है वाजिबा खातून। वाजिबा खातून है भाई इसका नाम, वाजिबा खातून जिसकी हो, नाम आलमगीर और बाप का नाम आलमगीर। वाजिबा खातून, बाप का नाम आलमगीर। हाँ चल, कांति पार है, वो पहुंच जाएगी। ठीक है चलो, ठीक है, बैठो बैठो बैठो, आ जाओ आ जाओ। बच्चियों को माएँ संभालती हैं। वाजिबा खातून বাবার নাম আলমগীর, মেয়েটা হারিয়ে গেছে, স্টেজ আছে, যার মেয়ে আছে সে নিয়ে যাবে বাড়ি কাঁদতে পার। बच्चियों को माँ संभालती है। बताओ माँ कितनी निडर होगी जो परवाह ही नहीं कि मेरी बेटी कहाँ है। बाजार में घूमो देखो तो मौलाना जर्जीज की तकरीर तो समझ में आ नहीं रही होगी, तो हो सकता है जलेबी जलेबी खरीद रही हो, चूड़ी उड़ी खरीद रही हो मार्केट में। तो हरी झंडियां लगा लिया करती थी। हरी झंडियों का मतलब होता था कि जो आना चाहे आ जाए। पूरे साल में उनके पास पता नहीं कितने मर्द चले जाते थे, लेकिन जो भी जाता वो सबका नाम नोट करती और उसको मालूम होता कि हमारे पास इतने मर्द आ चुके हैं। जब बच्चा पैदा होता, उसके पेट से जब हमल बच्चे की शक्ल में बाहर आता, तो वो औरत सबको बुलाती। उसमें कोई गिनती नहीं होती है, 100 भी हो सकते हैं। मिल गई? सबको बुलाती। जितने भी लोग उस औरत के पास आए और जिना किया, वो सबको बुलाती और सबको लाइन से बिठा देती। फिर खाने काबा से कयाफा शनास आता। कयाफा शनास नहीं समझेंगे आप, आओ मैं आपको समझाऊं। तू बहुत नौटंकी कर रहा है यार, बहुत ड्रामा कर रहा है। लगता है दुनिया में तेरा ही चैनल चल रहा है और किसी का है ही नहीं। हम लोग सब बेवकूफ बने बैठे हैं, कुत्ते की दुम की तरफ टेढ़ी हो गए, बिल्कुल सीधा हो ही नहीं सकते। कब से बोल रहा हूं मैं, खामोश हो जाओ, सामने बैठ रहे। कयाफा शनास को बुलाया जाता, कयाफा शनास खाने काबा से। आपके यहाँ उसको क्या बोलते होंगे हमें नहीं मालूम। वो उन सब लोगों को देखेगा, 100, 150, 200 जो आदमी हैं उनकी शक्ल देखेगा हैं, और फिर बच्चे की शक्ल देखेगा। मतलब ये बच्चा सबसे ज़्यादा किसकी शक्ल से मिल रहा है। फिर वही कयाफा शनास उस बच्चे की शक्ल इतने लोगों में से, जितने उस औरत से मिले हैं, जितने लोग मिले उनसे मिलाकर देखकर जिसकी गोद में रख देता था इस बच्चे को, ये बच्चा उसका बच्चा माना जाता और ये उसकी बीवी मानी जाती, और बकिया लोग मौज मस्ती में निकल जाते। ये शादी का तीसरा तरीका था। इथकलोगत पराए जनेशु खरगर मिली। जानवरियत जब भरी होगी, आज भी इतनी जानवरियत नहीं है। शराब बता दी। जुए का हाल तो ये था कि हम कितने भी बिगड़े हुए हों, ज्यादा से ज्यादा बस अड्डे पर और स्टेशन पर 100 रुपए की, 200 रुपए की लॉटरी खरीद सकते हैं। जुए में 5, 6, 10 हजार रुपए हार सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, उसमें हम जुआ खेल सकते हैं। फला टीम जीतेगी, इतना रुपया, नहीं तो हम इतना देंगे। ये प्लेयर इतना रन बनाएगा, इतने विकेट लेगा, उस पर जुआ। ये एक है हमारे यहाँ गंभीर समस्या। लेकिन चाहे कितने बड़े जुआरी हों, लेकिन आज तक ये नहीं सुना गया है कि जुआ खेलते वक्त किसी ने जुए में रकम हार जाने के बाद अपना घर, और घर भी हार जाने के बाद अपनी बीवी, और बीवी को भी हार जाने के बाद अपनी बेटी भी जुए में लगा दी हो। हमने आज तक ये नहीं सुना है। अरब के अंदर जुए में जब रकम हार जाते थे तो मकान लगा दिया करते थे, और मकान जब जुए में हार जाया करते थे तो अपनी बीवी जुए में लगा दिया करते थे, और बीवी भी जब जुए में हार जाते थे तो अपनी 16, 17, 18 साल की जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। हितकलोगत प्राय जनेशु खरगर मिड़ी धर्मत्राणाय सत्वैनि भगवान उत्रश्यति। जब बहुत ज्यादा अंधकार होगा, बहुत ज्यादा गुमराही होगी, बहुत ज्यादा जब जानवरियत और हैवानियत फैल जाएगी,
अच्छा करने के लिए, सत्वैन और सत्य को स्थापित करने के लिए, सत्य को नाफिज करने के लिए, सच्चाई को लागू करने के लिए, सच को कायम करने के लिए भगवान अवतरष्यति, भगवान अवतार भेजेगा, कल्कि को भेजेगा, उन्मा को भेजेगा, नराशंस को भेजेगा, महामत को भेजेगा। महमद आएंगे, अहमद आएंगे, अहमद आएंगे, मोहम्मद आएंगे, उस वक्त आएंगे। तो आप देख लीजिएगा, हालात बताते हैं अरब के, जब ये जानवरियत फैल गई थी, उसी माहौल में मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी बनाकर भेजा गया। कितने मौलाना स्टेज पे थे जब हम आए, यहाँ से लेके वहाँ तक कुर्सी भरी पड़ी थी, स्टेज पे भी मौलवियों की तादाद। और आपके इलाके में कितने मदरसे होंगे, कोई गिनती याद है? 40-50 आपके इलाके में। पूरे बंगाल में कितने होंगे, गिनती नहीं है, मैं मालूम। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप किस इलाके में 40-50 मदरसे, और एक मदरसे से कितने मौलवी बन के निकलता है? एक साल में 40-50 मदरसों से कितने मौलवी बन के निकलते होंगे? इतने मौलाना मिलकर भी, इतने मदरसे मिलकर भी हमारे समाज, हमारे गांव, छोड़ दीजिए दूसरा, आपके अपने इलाके से, क्या नाम है इस गांव का? राहटपुर, इसी इलाके से, सिर्फ राहटपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर, आप देख लीजिए, इतने मदरसे होने के बाद, इतने मौलवी होने के बाद, आज भी राहटपुर से, सिर्फ आपके गांव से सब मिलकर सिर्फ जहेज की प्रथा खत्म नहीं कर पाए, और गुनाह तो छोड़ दीजिए आप, सिर्फ जहेज नहीं मिटा पाए। आज भी लड़का शादी के मौके पर लड़की वालों से बाइक, मोटरसाइकिल मांगता है, 2.5-3 लाख 5 लाख रुपए की डिमांड करता है। बताएं मदरसों से क्या फायदे हो रहे हैं, और इन मौलवियों से जो पढ़ के निकल रहे हैं, आज एक बुराई नहीं मिट पाई, एक बुराई। अरब की सरजमीन पर जुआ अपनी चरम सीमा पे था, शराब अपनी चरम सीमा पे थी, जिनाकारी बदकारी अपनी चरम सीमा पे थी। कोई गुनाह ऐसा नहीं था जो अरब की धरती पर ना होता हो, और अकेले सिर्फ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को ऐसे खत्म किया कि जब आपने शराब को हराम होने का ऐलान किया, तो मक्के की नालियों, मदीने की नालियों में शराब ऐसे बह रही थी जैसे पानी का सैलाब आ गया हो। जैसे आपके यहाँ सैलाब के मौके पर नदियों में उफान आ जाता है, नदियां अपने खतरे के निशान से पार हो जाती हैं। अरब की सरजमीन पर, मदीने की सरजमीन पर शराब इतनी नालियों में डाली गई, इतनी बहाई गई कि वो नालियों से निकल निकल कर सड़क पर आने लगी। जुए की हुर्मत का ऐलान किया तो देखिए लोगों ने बैक वक्त जुआ छोड़ दिया। जिनाकारी की हुर्मत का ऐलान किया तो औरतें ऐसी पाक दामन बन गई, इतनी नेक बन गई कि आप उसकी मिसाल नहीं दे सकते, क्योंकि इस्लाम जानता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मालूम है, एक औरत की सबसे बड़ी इज्जत वही चीज है, शर्मगाह। इसीलिए कत्ल के लिए 2 आदमियों की गवाही मांगी गई है, लेकिन जिना के लिए 4 लोगों की गवाही मांगी गई है, ताकि कोई किसी औरत को ऐसे ही बदनाम न कर दे, कोई किसी लड़की पर ऐसे ही तोहमत न लगा दे। मौलवी जर्जीस ने एक लड़के को और एक लड़की को जिना करते हुए देखा है, बंद कमरे में देखा है, दोनों को नंगी अवस्था में देखा है, लेकिन सिर्फ जर्जीस ने देखा है। जर्जीस अपनी जबान पे कंट्रोल कर, इस्लामी हुकूमत अगर मौजूद हो तब भी तुम नहीं बोलोगे, इसलिए कि तुम्हारे पास 4 गवाह नहीं है। किसी भी लड़की की इज्जत व आबरू को तुम उछाल रहे हो, ये उनका जाती मामला है। वो चाहे तो तौबा करके अपने रब को
मना सकते हैं, लेकिन जर्जीस साहब को तो दुश्मनी है उस लड़के से भी और उस लड़की से भी। आए और कह दिया साहब उन दोनों को मैंने गलत काम करते हुए देखा और हकीकत में देखा और सच में देखा। मैं कसम खा के कहता हूं कि अल्लाह की कसम मैंने देखा, लेकिन इसके बावजूद इस्लामी समाज, जहां इस्लामी कानून होगा वहां मेरी बात नहीं मानी जाएगी, मेरी बात नहीं मानी जाएगी। जर्जीस साहब तुमने देखा? हाँ। दूसरा गवाह? साहब हमें नहीं मालूम। देखने के बावजूद हम मुजरिम हैं। देखिए एक लड़की की इज्जत को इस्लाम ने कितना प्यारा बनाया, जिसको हम मोबाइलों में बात कर करके छलनी छलनी कर देते हैं। गुफ्तगू हुई? हाँ आ जाओ। इस जलसे में भी आई होंगी, फोन पे बात करके 3-4 बजे सेटिंग हो गई होगी, हाँ फला जगह मिलेंगे। आज तो तुम्हारे पापा भेज ही देंगे जलसे के नाम पे, कौन रोकेगा? तुम हंस रहे हो, ये रोने का मकाम है, रोने का। हमारी बहनों बेटियों के लिए कहाँ पर मीटिंगें हो चुकी हैं कि इनको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ और जगह दो और गैर मुस्लिमों से इनके निकाह करवाओ और 2-4 बच्चे पैदा करके बच्चे अपने पास रख के इनको छोड़ दो। हमारी बेटियों के खिलाफ मीटिंगें हो चुकी। आप हंस मोबाइल में लगे हो, एक्सक्यूज मी, हाय हाय डार्लिंग। इसी में आज हम पड़े हुए हैं। याद रखो जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, अल्लाह की कसम ये रास्ता तुम्हारे घर तक जाता है, तुम्हारी दहलीज तक जाता है। कुरान ने जिना को क्या कहा है? ला तक़रबुज़ ज़िना। कुरान ने क्या कहा है? ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ये बहुत गंदा रास्ता है। अल्लाह ने जिना को गंदा रास्ता क्यों कहा? जिना को ये नहीं कहा गंदा काम। अल्लाह ने क्या कहा? गंदा काम तो है ही, लेकिन बहुत गंदा रास्ता भी है। ये गंदा रास्ता क्यों कहा? पूरे 1 साल तक मैं यही ढूंढता रहा कि जब जिना गंदा काम था तो गंदा काम कह दिया था अल्लाह ने, काफी था, लेकिन गंदा रास्ता क्यों कहा है? जिना रास्ता कैसे हो सकता है? गंदा रास्ता। 1 साल तक पढ़ा, 1 साल तक किताबों की हमने पन्ने पलटे, 1 साल तक हमने चेक किया, 1 साल तक मौलवियों से राब्ते कायम किए, 1 साल तक बड़े बड़े उलमा से हमने कांटेक्ट किया, तब 1 साल के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अल्लाह ने इसको गंदा रास्ता इसलिए कहा क्योंकि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो इसकी मंजिल तुम्हारे घर तक जाती है। यानी तुम दूसरों की बहन बेटी के साथ जो जिना करने का इरादा करते हो, हकीकत ये होती है कि जिस रास्ते पे चल के तुम दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो, ये रास्ता तुम्हारे घर तक जाता है, यानी तुम्हारी बहनों बेटियों की इज्जत भी लूटी जाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने इसको गंदा रास्ता कहा है। गंदा रास्ता। हम समझ रहे हैं कि दूसरे की बहन है उसके साथ हम गलत काम कर रहे हैं, हकीकत यह है कि ये रास्ता हमारी बहन तक जा रहा है। हम समझ रहे हैं कि दूसरे की बेटी है जिसके साथ हम गलत काम कर रहे हैं, हकीकत यह है कि हम अपनी बेटी के लिए दरवाजा खोल रहे हैं और ये रास्ता हमारी बेटी तक आता है। कितने दिन हो गए हमने नहीं बताया, और शायद आपको मालूम हो कि हमारे इलाके का वाकया है कि एक अमीर आदमी ने एक रिक्शा चलाने वाले को, जिसकी सिर्फ एक बहन थी, बस एक बहन, कोई नहीं था उसका, किसी बात पर नाराज होकर FIR करके उस लड़के को जेल पहुंचा दिया। अब बहन अकेली हो गई। मोहल्ले के लोगों ने साथ दिया उसका, खाना पानी हर तरीके से उसको कोई तकलीफ नहीं होने दी। 4 साल के बाद जब लड़का जेल से छूटा तो बहन अपने भाई से चिपक गई, रोने लगी। भाई ने तसल्ली दी, बहन अब क्यों रोती हो, मैं तो आ गया हूं। बहन ने कहा भाई गांव के लोगों ने बहुत साथ दिया, अगर आज ये गांव वाले साथ न देते तो आज आपकी बहन आपको चेहरा दिखाने के लायक नहीं होती। आपको जेल से छुड़ाने के लिए मैं अपने जिस्म को बेचने के लिए तैयार हो चुकी थी, दर दर की ठोकरें खाने के लिए तैयार थी। आपको जेल से छुड़ाने के लिए मैं इस दलदल में कदम रखने के लिए तैयार थी, लेकिन मोहल्ले वालों ने मुझे अपनी बेटी और अपनी बहन की तरह समझा और मुझे अपने घर में पनाह दी। भाई ने अपनी बहन के मुंह पर हाथ रखा। अरे चाचा जी चुप करा दो इनको, मेरे कान में आवाज़ जा रही। अब वक्त है इनका, मन रब्बू का और माँ दीनू का तैयारी करें कि तुम्हारा रब कौन है। फरिश्ते सवाल करेंगे, स्टेज पे बोल रहे हैं चाचा। सुनिए मेरे भाइयों, ताज्जुब करोगे, लड़के ने अपनी बहन के मुंह पे हाथ रख लिया। चुप, जो मुंह में आता बकती चली आ रही है। कहा भाई जो हकीकत है
चुप! कौन है जो मेरी बहन पर गलत नजर डाल सके? आज तक इस जमीन की धरती पर, आसमान के नीचे किसी मां ने वो बेटा पैदा नहीं किया जो मेरी बहन पर गलत नजर डाल सके। बहन ने कहा, भाई इतना विश्वास है मेरे ऊपर? कहा, नहीं तेरे ऊपर नहीं, अपने ऊपर। कहा, है कैसे? कहा, मेरी बहन तू जानती है कि तेरा भाई क्या करता है? कहा, रिक्शा चलाता है। तेरी बहन तेरा भाई सुबह उठता है, शाम तक रिक्शा चलाता है, तुझे पालता है, पोसता है और तेरे जहेज के सामान की तैयारी करता है, तेरा घर बसाने की तैयारी करता है। तेरे भाई के रिक्शे पर सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितनी औरतें बैठती हैं और कितनी स्कूल की और कॉलेज की लड़कियां तेरे भाई के रिक्शे पर बैठती हैं। मेरी बहन, तेरे भाई के रिक्शे पर जितनी भी लड़कियां आज तक बैठी हैं, मैंने उन लड़कियों को अपनी बहन की नजर से देखा है। जब मैंने आज तक किसी की बहन पर गलत नजर नहीं डाली तो मेरी बहन पर गलत नजर कौन डाल सकता है? यहां बैठे हुए जितने लोग हैं समाजियों, सुनो, उत्तर दिनाजपुर के चप्पे चप्पे से आने वालों सुनो, अपनी बहन पर भरोसा वही करना यहां से उठने से पहले जो अपने आप को भरोसे के लायक समझता हो। इतना याद रखना, अगर तुमने किसी की बहन और किसी की बेटी की इज्जत व आबरू से खेला है तो हकीकत में तुमने अपनी बहन और अपनी बेटी की इज्जत व आबरू से खेला है। उस नौजवान ने साफ कहा, मैंने आज तक तेरे भाई के रिक्शे पर जितनी लड़कियां बैठी बहन की नजर से देखा। जब मैंने किसी की बहन पर गलत नजर नहीं डाली तो मेरी बहन पर कौन गलत नजर डाल सकता है? इस जुमलों से हमें और आपको सबक लेना चाहिए। सबक, अगर आपने किसी की बहन और बेटी पर गलत नजर डाली तो याद रखना, हमने रास्ता बना दिया है अपने घर में अपनी बहन और अपनी बेटी के दरवाजे तक पहुंचने का। अल्फाज कड़वे हैं मगर हक बजाने भूं, अल्फाज सख्त हैं लेकिन अल्लाह की कसम गलत नहीं है। अल्फाज में थोड़ी सी सख्ती है लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि माफी का चंदा करने की आदत मेरी नहीं है। किस बात पर माफी मांगूं? कोई गलत बात मैंने नहीं कही है। अगर तुम दूसरों की बहनों बेटियों पर गलत नजर डालोगे तो हमारी बहनों बेटियों पर भी गलत नजर डाली जाएगी। कमा तुदीन तुदान, अरबी जबान का मकूला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये हालात है, ये सूरत हाल पैदा हुई। एक जहेज की लानत हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। अकेले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कितनी बुराइयों को खत्म किया है। शराब मक्के में बह गई, जुआ खत्म हो गया और अमन व अमान ऐसा कि आज भी सऊदी अरब के अंदर अगर 5 रियाल और 10 रियाल भी पड़े हों तो डर से कोई उठाता नहीं है। अगर उठा लेंगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया तो कहीं मेरा हाथ ना काट डाला जाए। आज भी अमन व अमान और शांति का ऐसा गहवारा बन गया है हमारा अरब मुल्क। आप गौर कर रहे हैं? मदरसे चलाइए, अल्लाह आपके इन मदरसों को दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इनसे उलमा और हुफ्फाज का एक जखीरा निकाले और बारेलाह इन उलमा और हुफ्फाज को चप्पे चप्पे में भेजकर इनसे दीन की खिदमत ले ले। लेकिन सुनो, हमें समाज की बुराइयों को खुद आगे बढ़कर दूर करना होगा। क्या आपने किसी मौलाना को ये पावर दिया? सिर्फ इतना पावर है कि जर्जी साहब यहाँ कुर्सी पर बैठे हो, 1.5 घंटा 2 घंटा जितनी देर बोल रहे हो, बस यहाँ पर जो चाहो बोल दो। क्या आपने कभी हमें ये मौका दिया है कि किसी के बारात में लड़के की हम जाएं और वहां पर ये कह सकें कि ये 300 आदमियों की जो बारात आई है ये गलत है, इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है? मौलाना जर्जीस को आप बारात से बाहर भगा देंगे, कहेंगे चल जलसे में बोलना, ये तेरे बाप की बारात नहीं है, मेरे बेटे की बारात है। आप ये पावर नहीं दे सकते मौलाना जर्जीस को। आपकी शराब की दुकान खुली हुई है,
मौलाना जर्जीस तो शराब की दुकान पर खड़े होकर अगर ये कहे कि गलत है, बंद करो, कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, आप भगा दोगे। अरे साहब उसकी दुकान को लाइसेंस मिला, तुम कौन होते बोलने वाले? साहब हराम है ये, साहब जलसे में बोलो, जुमे के मेंबर पे बोलो, खुतबे में खड़े होकर यहाँ क्यों बोलो? भागो, तुम्हारी गलती है, आप मौका नहीं देंगे। हजरत उमर फारूक ने एक आदमी को देखा, वो आगे आगे जा रहा है और उसका ये पैजामा टखनों से नीचे है। ये टखनों से नीचे जो हम कपड़े पहनते हैं ना, नमाज पढ़ी ऊपर कर लिया बस, और नमाज पढ़ने के बाद फिर निकाल दिया, फिर टखने से नीचे गिर रहा है। ये टखने से नीचे वाला हिस्सा जहन्नम में जलाया जाएगा। टखना है ये, इससे ऊपर पहनना है यहाँ, इससे नीचे वाला हिस्सा तकब्बुर की अलामत है, तकब्बुर की। साफ कह दिया कि नीचे जितना भी पैजामा या लुंगी आपकी लटक रही होगी, उतना हिस्सा काट कर आपका जहन्नम के अंदर जलाया जाएगा। और हदीस अल्लाह के रसूल की है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन 3 लोगों पर रहमत की नजर नहीं डालेगा। उन 3 लोगों में एक शख्स ये भी शामिल है जिसका पैजामा या लुंगी टखने से नीचे लटक रहा होगा। हजरत उमर फारूक ने एक आदमी को देखा कि उसका पैजामा टखने से नीचे लटक रहा है, तो दूर से आवाज देते हैं, उसने नहीं सुना। आपने फिर जोर से आवाज दी, अहाइस अंता या रजुल। उसने पीछे मुड़ के देखा कि हैं हजरत उमर आ रहे हैं। जी जी क्या? अहाइस अंता, अरबी के जुमले देखिए। हजरत उमर ने क्या कहा? अहाइस अंता, क्या तुझे महीना आ रहा है? महीना समझते ना, लेडीज़ को जो पीरियड आता है, जो एमसी होती है, महीने में चंद दिन उनको जो ब्लड आता है, तो हज़रत उमर ने उस आदमी से कहा, हाय जनता, क्या तुझे पीरियड आ रहा है? वो क्या इधर उधर देखने लगा है, किससे कह रहे हैं? कहा अमीरुल मोमिनीन किससे कह रहे हैं? यहाँ तो कोई औरत नहीं जा रही है। कहा कि अंता कह रहा हूँ तब भी समझ में नहीं आ रहा है, तुझे कह रहा हूँ, तुझे पीरियड आ रहा है, महीना आ रहा है, एमसी हो रही तुझे। कहता मुझे? कहाँ? तेरे बारे में पूछ रहा हूं। मुस्कुरा के कहता है आपका दिमाग सही है, हल यही जुर रजुल, क्या मर्द को भी महीना आता है? उसने क्या कहा? क्या मर्द को भी महीना आता है? तो हजरत उमर ने कहा क्या मर्द भी टखने से नीचे कपड़ा पहनता है? यानी मर्द को नहीं, औरत को हुक्म दिया अल्लाह के रसूल ने कि वो टखने से नीचे कपड़ा पहने, उसके तो पैरों की उंगली भी न दिखे। ये औरत को हुक्म दिया, मर्द को हुक्म दिया है कि टखनों से ऊपर पहने। जब तू कपड़ा पहनने में औरत का काम कर सकता है, तो हो सकता है कि महीने में भी औरत का काम कर रहा हो, तुझे महीना आ रहा हो। कहने लगा नहीं नहीं ठीक है, उसने ऊपर कर लिया। हजरत उमर ने अपने गुलाम से कहा असलम जी बिस्किन, छुरी लाओ। आय हाय हाय, कहा छुरी लाओ। आपका समाज मौलवी जर्जीस को यह परमिशन नहीं दे सकता। हजरत उमर ने कहा छुरी लाओ, छुरी आ गई। उसने कहा क्या कर रहे हैं अमीरुल मोमिनीन? कहा इसको मैं काटूंगा जो टखने से नीचे है। कहा मैं घर जाके खुद काट लूंगा, आप दोबारा देखेंगे तो आप हमारा पैजामा ही फाड़ देना, लेकिन हमें मौका दे दीजिए, घर जाके संभाल लूंगा। हजरत उमर ने कहा कि यकीनन तू घर जाके संभाल लेगा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई बुराई तुम अपनी आंखों से देखो तो पहले अपने हाथ से दूर करो। जब हाथ से दूर करने की ताकत ना हो तो जबान से मना करो, और जबान से भी मना करने की ताकत ना हो तो दिल से बुरा समझो। मेरे पास हाथ से दूर करने की ताकत है, इसलिए इस बुराई को मैं अपने हाथ से दूर करूंगा, वरना कयामत के दिन मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। इधर आ, काट दिया पैजामा, यहां तक काट दिया, सूफी बना दिया। ले, जिस बुराई को अपनी आंखों से देखा अपने हाथ से दूर कर दिया। क्या समाज हमें इस बात की इजाजत देगा? समाज जलसे की इजाजत दे देगा, स्टेज बना देगा, मौलाना साहब बोल लो, जो मन में आए बोल दो, यहां कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन सिर्फ इसी 1.5 घंटे और 2 घंटे तक आपकी हम सुन लेंगे, इसके बाद नहीं सुनेंगे। कुरान पढ़ जाइए, अल्लाह ताला ने कहीं नहीं कहा कि नेकियां 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 नेकियां, ये नहीं कहा, लेकिन बुराइयों के सिलसिले में इतना जोर दिया कि बुराइयों से रुको। हाथ से दूर करने की ताकत हो तो हाथ से करो, हाथ से दूर करने की ताकत ना हो तो जबान से रोको, और जबान से भी दूर करने की ताकत ना हो तो
दिल से बुरा जानो। आज शराब के कितने अड्डों को तुम रोक सकते, ठीक है दूसरों की आप नहीं कर सकते हो, अपने घर की बुराई तो रोक सकते हो। अपने घर की बुराई, आपके घर में आपका बच्चा 12 बजे रात तक मोबाइल चलाता है, एंड्रॉयड मोबाइल, फेसबुक और मैसेंजर और यूट्यूब पे लगा हुआ है, कितना आपने अपने घर की इस बुराई को रोका है। आपकी बेटी 18 साल 20 साल की हो चुकी है, एंड्रॉयड मोबाइल चला रही है, आपने अपनी बेटी के ऊपर कितनी निगरानी रखी है। फेसबुक भी चला रही है, व्हाट्सएप भी चला रही है, अपने स्कूल के दोस्तों और सहेलियों से बातें भी कर रही है, आपने कितनी निगरानी की है अपनी बेटी पर। छोड़ दो बारात 400-500 आदमियों की, ये 300-400 आदमी जितने बारात में जाते हैं, मैंने कभी इनको बाराती कहा ही नहीं है। आज भी मैं कहता हूं कि ये सब चोर हैं और डाकू हैं। बुरा लगता है, हाँ अल्लाह के नबी ने फरमाया जब लड़की वाले की यहां जब तुम खाना खाने जाते हो, लड़की वाले के घर दखला सारिकन व खरज सारिकन, चोर बनकर दाखिल होते हो और डाकू बनकर निकलते हो। कौन सी हदीस है जो तुम्हें लड़की वाले के घर खाने की इजाजत देती है, बताओ तो। मेरी बेटी है, जर्जी साहब का काम यह है कि निकाह पढ़वाया जाए दामाद के साथ और बेटी का हाथ पकड़ के दामाद को दुआ देकर रुखसत कर दिया जाए। दामाद के साथ जो चले आ रहे हैं 100, 200, 500 आदमी, उनको खिलाने की जिम्मेदारी मौलाना जर्जीस के ऊपर नहीं है, शरीयत ने नहीं दी है। शर्म नहीं आती? खाते हो तो लड़की वालों के घर खाते हो, खाना चाहिए तो लड़के वालों के घर खाना चाहिए। वलीमा करो, कौन मना करता है? वलीमे में 100 आदमी की दावत कर रहा है, बारात में 500 आदमी ले जा रहा है? वलीमा कर ना, 500 नहीं 1000 को बुला, एक दिन वलीमा कर, दूसरे दिन भी कर, 20 दिन वलीमा कर, शरीयत तुझे इजाजत देती है। तुझे खुशियां कर, लेकिन लड़की वाले पर बोझ मत बन। लड़की वाले ने 18 साल 20 साल पाल पोस कर अपनी लड़की बड़ी करके तुझे दे दी, बहुत बड़ा काम कर दिया, ये बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी, लेकिन उस लड़की को लेने के लिए भी 500 आदमी जाएं, 400 जाएं, ये चोर जाएं। और डाकू मैं इसलिए कह रहा हूं, वहां जा गए, वहां बैठ गए, मालूम है कि अब बड़ा नहीं खिलाएगा। क्यों? क्योंकि लड़के के बाप ने पहले ही कह दिया 400 लेके आ रहा हूं, जहेज में 2-4 आइटम कम दे देना चलेगा, लेकिन मेहमानों की इज्जत अच्छी कर लेना। हमारे साथ जो 300 आदमी बाराती आ रहे हैं ना, इनकी खातिरी अच्छी तरीके से कर लेना। ये भीख मांगने की इंटरनेशनल स्टाइल है। मतलब जानते हो क्या हुआ? मैं जर्जी साहब का बेटे की शादी, जर्जी साहब क्या कह रहे हैं सुनो, मोटर आइटम 1-2 कम कर लेना जहेज में चलेगा, लेकिन 250-300 आदमी जो लेके आ रहे हैं ना, इनकी खातिरी ज़रा अच्छी कर देना। ये अच्छी कर देने का मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब बड़े का आइटम नहीं, सब मटन रहना चाहिए, चिकन भी पोल्ट्री वाला नहीं, देशी रहना चाहिए। ये भीख मांगने की एक नई स्टाइल है, इंटरनेशनल स्टाइल। और जो ये कहता है तू कितना बड़ा अमीर बना हो, चाहे कितना साहूकार, मौलवी जर्जीस कहता है तू इंटरनेशनल भिखारी है, जा, बुरा लगता है तो लगता रहे। तेरा अमीरपन और तेरा साहूकारीपन मेरे जूते के बूट के नीचे नहीं समझता तुझे कुछ। क्या करेगा तू, मेरा कर ले। लड़की वाले पर बोझ बनेगा, लड़की वाले के यहां खाना खाएगा, लड़की वाले के यहां बारात में 250-300 आदमियों को लेके जाएगा। लड़की वाले के पर कोई जिम्मेदारी आयत नहीं होती है कि वो सबको खिलाए। इस चीज को खत्म करिए समाज से। और इंटरनेशनल भिखारियों को देखिए, कौन बाइक दे देना, मेरा लड़का 5 लाख की दुकान पे बैठता है,